Good morning, everyone. In this class, we are going to study some previous year board questions. Now, firstly, first question is here, which is asked in CBSE 2020. You are given three capacitors of 2 microfarad, 3 microfarad, and 4 microfarad, respectively. First question is form a combination of all these capacitors of equivalent capacitance 13 by 3 microfarads. Second question is what is the maximum value and minimum value of the equivalent capacitance that can be obtained by connecting these capacitors. See, solution. Consider C1 2 microfarad, C2 3 microfarad, and C3 4 microfarad. Here we have to form a combination of all these capacitors of equivalent capacitance so that this becomes 13 by 3 microfarad. Part A, equivalent capacitance. If I name it C equivalent, it is given as 13 by 3 microfarad, which is equals to 4.33 microfarad. Now we have to make combination of this so that resultant becomes this. How it is connected? See, 4.33 is greater than the maximum value of one individual capacitance 4 microfarad, but it is not greater than all these combinations, so we cannot arrange all these capacitors in parallel. So we will see this result will be the combination of some parallel and series arrangements. Consider C1 and C3 in parallel, in series. सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपको याद हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 बाई सी डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C3. ऐसा ही होगा, सीरीज में उल्टा हो जाता है कैपेसिटेंस में. तो 1 बाई सी डैश मैंने नाम दिया उसकी वैल्यू को. 1 बाई C1 है 1 बाई 2, 1 C3 है 1 बाई 4 हो गया. तो ये वैल्यू हो गई 1 बाई सी डैश इज इक्वल्स टू 4 LCM, 2 2s are 4 plus 4 1s are 4, 3 by 4. So C dash is equals to almost, इसको उल्टा कर दें तो 1.33, और we can say 4 by 3. अभी इसको ऐसे ही रहने दो, 4 by 3. Now next is we have to show this as equivalent. Now consider C2, कौन वाला, ये वाला. ये कैसा है, इसको मैंने मान लिया इज पैरेलल टू दिस, जो हमारा बाद में रिजल्टेंट आया इसके पैरेलल है C डैश के. तो पैरेलल है तो सीधे जुड़ जाएगा. सो C इक्विवेलेंट जो होगा वो इसके बराबर होगा C डैश प्लस C2, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट है, पैरेलल में सीधे कैपेसिटेंस जुड़ जाता है. C डैश हमने निकाला 4 बाई 3 प्लस C2 कितनी वैल्यू है 3. देखो जोड़ दो, 3 3 9 9 4 13 बाई 3 माइक्रोफेरेट आ गया ना भाई. तो और ये इसका फिगर कैसा नजर आएगा उसको देखिए. इसको जोड़ना है पैरेलल, किसको, C2 को पैरेलल जोड़ना है इन दोनों के सीरीज अरेंजमेंट के, यानी पिछले वाले 2 और 4 के सीरीज अरेंजमेंट के पैरेलल उसको जोड़ देना है. यानी ये अगर मैं कह दूं ये है हमारा C1, ये है हमारा C3, जो कि C1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, C3 की कितनी है 4 माइक्रोफेरेड. इन दोनों का सीरीज अरेंजमेंट कर लिया. अब इसके पैरेलल क्या जोड़ दिया, C2, जो कि कितना है 3 माइक्रोफेरेड. और इस तरह से ये अरेंजमेंट हमारा होता है. ये और भी 2 पॉइंट बना लिए इनके बीच में. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. आ गया ये.
नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए इसी का पार्ट है, what is the maximum and minimum value of the equivalent capacitance that can be obtained by connecting these combinations। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कब आती है जब कैपेसिटर्स जुड़े हों, मैक्सिमम वैल्यू कब आती है जब कैपेसिटर्स जुड़े हों पैरेलल, और मिनिमम वैल्यू कब आती है जब कैपेसिटर्स जुड़े हों सीरीज़ में। मिनिमम वैल्यू तब आती है जब कैपेसिटर्स जुड़े हों सीरीज़ में। तो बी पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉर मैक्सिमम all capacitors are connected in parallel, all capacitors are connected in parallel। पैरेलल अरेंजमेंट कैसा होता है, C equivalent is equals to C1 plus C2 plus C3, simple। So it is 2 microfarad plus 3 microfarad plus 4 microfarad, so it is maximum value 4 3 7 2 9 9 microfarad is its maximum value CEQ। इसको मैं CEQ max कह देता हूँ, C equivalent max, maximum value of equivalent। अब इसी का अगर हम मिनिमम का निकालना है, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज जोड़ लो, सीरीज क्या होता है 1 बाई में होएगा 1 बाई सी इक्विवेलेंट मिनिमम is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। So it is how much, 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, it is 4 3 7 12, 6 are 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12, 6 4 10 3 13 12। So it is, if I am taking reciprocal of it, तो C equivalent minimum value जो होगी C equivalent की वो कितनी होगी 12 by 13, it is smaller than 1। See, it is in points। So this is maximum and minimum value of this question। अब next question देखेंगे। Now it is very good question। Here the space between the plates of a parallel plate capacitor is completely filled in two ways। It is asked in CBSE 2020 question number 22। In the first case it is filled with a dielectric slab of dielectric constant K। In the second case it is filled with two slabs of equal dimensions but dielectric constant K1 and K2 respectively as shown in the figure। The capacitance of the capacitor is same in the two cases। Obtain the relationship between K, K1 and K2। See, here two arrangements are given, first is this, second is this। Here actually I have corrected it for explanation। You can see here dimensions are given L by 2 and L by 2। Sometimes it is given as area also, A by 2 and A by 2। यहाँ L by 2 लेके चलते हैं जैसा पेपर में दिया था, तो हम थोड़ा आपको ये वाला भी बता देंगे, ये वाला भी बता देंगे। देखिए यहाँ एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यहाँ दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं, आधे दूरी तक ये भरा है, आधे इसमें फर्स्ट हाफ ऊपर वाले अपर पार्ट में इतनी है, लोअर पार्ट में ये। देखिए यहाँ पे जो स्पेशल दो चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। पहली चीज़ तो किस तरह से भरा हुआ है कि हाफ कहाँ से बटा है, नीचे आधे से, ऐसे आधा ना होके ऐसे। दूसरा, ये डायमेंशन L/2 दी हुई है, ये एरिया नहीं दिया हुआ है। डायमेंशन जब L/2 दी हो, ऐसे केस में आपको क्वेश्चन जो मिलता है उसमें अगर आपको ये पूरी लेंथ L लिखा हुआ है, डायमेंशन कह दे अगर ये L है, तो आपको ये मान के चलना है कि L ये लंबाई भी है, इसी प्लेट की चौड़ाई भी L है, चौड़ाई भी L है। तो अगर आपको किसी प्लेट को आपने ऐसा, जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा है,
अगर आपने ऐसे बांट दिया, ये L/2 ये L/2 हो गया, तो क्या ये वाली लेंथ चेंज हुई? ये तो L ही रही। तो यानी आपको लंबाई L लेना है और चौड़ाई इसकी क्या लेनी है? L/2। इस तरह में भी यहाँ L/2 लेकिन चौड़ाई लंबाई कितनी लेनी है? L लेनी है। तो उस तरह से सॉल्व होगा। तो अभी हम देखेंगे कैसे। ठीक है, तो इस केस में हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, ये K1 K2 और K के बीच में। तो फर्स्टली फॉर फर्स्ट केस, और देखिए थिकनेस दोनों की D दी हुई है ब्रिथ। फॉर फर्स्ट केस कैपेसिटेंस मैंने मान लिया C है कैपेसिटेंस। C इज इक्वल्स टू K भरा हुआ है, मान लीजिए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करी है फ्री स्पेस की, K एप्सिलॉन नॉट A। एरिया कितना है? देखो एरिया यहाँ A/2 दोनों नहीं है, लेकिन दोनों में सेम भरा है, तो A/2 A ले लेते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये A वाला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में L/2 दिया, यानी टोटल लेंथ L दिया, यानी टोटल लेंथ L और टोटल ब्रेड्थ भी कितनी ले लेनी चाहिए? L। तो L/2 L इंटू L, यानी एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू L, ये लेना पड़ेगा एरिया। ठीक है, और डिवाइड में थिकनेस कितनी? D। ठीक है, ये मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये दो पूरी लेंथ L में यही K ही भरा हुआ है, और जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेड्थ मान लेना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन इसी तरह से दी हुई है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले केस में। C1 मैं इसको नाम दे देता हूँ C1। ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ इसको। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, फॉर सेकेंड केस। देखिए सेकंड केस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो कैपेसिटर ऐसे हैं जो पैरेलल जुड़े हुए हैं। ऐसा आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि ये दो कैपेसिटर ऐसे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, जो बगल बगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें K1 भरा हुआ है, इसमें K2 भरा हुआ है, ऐसा ही दिख रहा है ये टुकड़े। और इसमें ध्यान ये देना है कि ये लेंथ ब्रेड्थ तो L ही L है इस वाले प्लेट की, इस जो प्लेट रखते हैं स्क्वायर प्लेट LL है। तो L/2 आधे में K1 भरा हुआ है, बाकी आधे में K2 भरा है। लेकिन इस दोनों प्लेट की ये जो अंदर वाली ब्रेड्थ है जो हमको दिख नहीं रही है, ये कुछ ऐसी होगी अंदर, ये वाली जो है ये तो L ही है ना, यहाँ पे जो अंदर हमको दिख नहीं रही है, ठीक है ना, तो ये L ही होगी। लेकिन इसकी ये वाली लंबाई L/2 है, इसी तरह यहाँ पे भी ये छुपी हुई L होगी, है ना, ये अंदर वाली, और ये वाली L/2 ही होगी। तो मुझे उसको L मान के चलना है। तो मैं इस वाले के ऊपर वाले को कैपेसिटेंस को मैं C2 कैपेसिटेंस कह देता हूँ, इसको C3 कैपेसिटेंस कह देता हूँ। ठीक है, तो C2 और C3 अलग अलग लिखता हूँ। C2 इज इक्वल्स टू, देखो केवल उतना बड़ा आधा, C2 इज इक्वल्स टू L नहीं K1 तो रहेगा ही, एप्सिलॉन नॉट। एरिया कैसे निकालेंगे? L/2, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है ये, और लेकिन अंदर जो छुपा हुआ लेंथ है वो तो L ही है ना, वो तो आधा कटा नहीं, तो इंटू L, ये उसका प्लेट एरिया हो गया। डिवाइड किससे करें? थिकनेस तो D ही है दोनों में, तो D से। इसकी वैल्यू क्या हो गई? K1 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई, अब देखो ये 2 नीचे चला आया, 2D। इसी तरह यहाँ पे देखिए C3 दूसरे वाले के लिए, नीचे वाले पोर्शन के लिए भी सेम हो जाएगा। K2 नाम देंगे क्योंकि इस बार K2 भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाकी लेंथ ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगी, L2 इंटू L, है ना, डिवाइडेड बाई D ही रहेगा क्योंकि थिकनेस तो दोनों तीनों में सेम है। तो K2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई 2D, ये भी हो गया। अब देखो ये दोनों जो हैं ये दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या लिख लें? सिंस इन केस 2 C2 and C3 are in parallel, so equivalent capacitance in second case will be, मैंने नाम दे दिया C इक्विवेलेंट, है ना, या फिर मैं इसको ऐसे नाम देता हूँ C2, इट इज़ इक्वल्स टू C2 प्लस C3, पैरेलल जुड़ा है ना, तो C2। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सेकेंड केस, सीधे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सिंपल एडिशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई 2D। ये सेकेंड केस का आ गया।
इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2, ठीक है। और इक्वेशन 1 से हमारा जो ये था कितना था, के एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन द टू केसेस, यानी इन दोनों की वैल्यू C1 और C2 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के कैपेसिटेंसेस बराबर है, यानी इक्वेशन 1 वाला कैपेसिटेंस दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 2 वाला कैपेसिटेंस। इसका मतलब के एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी जो है वो किसके बराबर है, K1 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई 2D, है ना। अब देखो ये जो बराबर है, जो चीज़ कटे काट दो, तो K देखो एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर डी, यहाँ से ऐसे एल स्क्वायर बाई डी, यहाँ से भी यही चीज़ कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी कॉमन ले लो, तो बचेगा K1 बाई 2 प्लस K2 बाई 2। तो ये पूरी क्वांटिटी तो कट गई, K इक्वल्स टू K1 प्लस K2 बाई 2, ये रिलेशन हमारा आ गया, ठीक है। यही उस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अब देखिए एक ये तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में, हाँ, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2, तो ये सिंपल सा हमारा सॉल्यूशन था। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कैपेसिटेंस से। एक क्वेश्चन और है 2019 में, CBSE 2019, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू a potential difference V. It is disconnected from battery and then connected to another uncharged capacitor of the same capacitance. Calculate the ratio of the energy stored in the combination to the initial energy on the single capacitor. देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। एक बैटरी से कैपेसिटर को कहाँ तक चार्ज किया गया, पोटेंशियल V तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हम ये मान लेते हैं, कंसीडर और लेट कर सकते हैं, कंसीडर कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर इज C मान लिया, ये कॉमन नहीं है, C। सो वी आर चार्जिंग इट, चार्ज बाई एक बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। और देखिए यहाँ एनर्जी स्टोर बताना है, व्हेन वी चार्ज इट टू पोटेंशियल डिफरेंस V, अगर V तक चार्ज करेंगे तब क्या होगा, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो, C और V दिया हुआ है, E1 मैंने कहा इनिशियल एनर्जी स्टोर कितनी थी, इनिशियल एनर्जी स्टोर हाफ C, पोटेंशियल कहाँ तक चार्ज किया, V तक, हाफ CV स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। नाउ दिस एनर्जी इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, नाउ वी आर गोइंग टू, इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ द सेम कैपेसिटेंस। देखिए अब यहाँ पे एक मतलब अनडिफाइंड अरेंजमेंट है, अनचार्ज कैपेसिटर से ओनली कनेक्टेड एंड देन कनेक्टेड। जब कनेक्शन की बात करें कैपेसिटर में और ये ना लिखा हो कि कनेक्शन पैरेलल है कि सीरीज़ है, तो आपको समझना चाहिए कि कनेक्शन पैरेलल ही होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी को।
अब देखिए कैपेसिटर अगर स्टोर करता है एनर्जी को, तो जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, जितना ज़्यादा वो एनर्जी स्टोर कर सकता है, उतना अच्छा कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर का जो पर्पज़ है उसी लिए यूज़ होता है। यानी कैपेसिटर को और ज़्यादा एनर्जी कब स्टोर करेगा या ज़्यादा कैपेसिटेंस उसका कब होगा, जब दो कॉम्बिनेशन मिलके एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो और ज़्यादा कैपेसिटेंस को बढ़ाए। तो इसलिए अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन मानना है। अब ये कह रहा है कि हमने इस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया जो कि अनचार्ज था, यानी उस पर चार्ज नहीं था, जिसका कैपेसिटेंस सेम था। यानी दूसरे ऐसे चार्ज से जोड़ा जिसका कैपेसिटेंस तो सेम था, लेकिन जिसमें चार्ज जो था वो नहीं था, अनचार्ज था। अब आपको अगर याद हो तो एक टॉपिक हमने पढ़ा था कि जब चार्ज कैपेसिटर को अरेंज करते हैं तो वहाँ एक डिस्चार्जिंग होती है, कि मतलब दूसरा कैपेसिटर चार्ज होता है, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बिना लॉस के। तो उसमें मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल यानी उसको मैंने कहा था जो आपके कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल था, पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन। ऐसे केस में जब एक चार्ज, देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर मैंने किसी एक कैपेसिटेंस को, ये देखिए ये इस थ्योरी से रिलेटेड, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर पीछे की थ्योरी है बैकग्राउंड की, कि अगर एक फाइनल पोटेंशियल पे पहुंचना है और दो कैपेसिटेंसेस जो अलग अलग पोटेंशियल पे थे उनको अगर हम पैरेलल जोड़ते हैं तो ये अरेंजमेंट रहता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दो कैपेसिटेंसेस जिनकी की वैल्यू थी C1 C2 और जो पहले पोटेंशियल थे V1 V2 पे, तो वो अगर आपस में पैरेलल जोड़ दिए जाएं तो इस तरह से इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकलता है। लेकिन इस केस में, अपने केस में, इन आवर केस, पहला पोटेंशियल V1 की वैल्यू V है, लेकिन दूसरा कैपेसिटेंस अनचार्ज है, यानी पोटेंशियल 0 है ना, यानी V2 की वैल्यू 0 है। इसी तरह पहला वाला कैपेसिटेंस और दूसरा वाला कैपेसिटेंस दोनों सेम है, यानी C1 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C2, यानी दोनों C1 C2 की वैल्यू मैंने C मान लिया। अब इस वैल्यू में अगर हम रख देंगे ये सारी वैल्यू तो ये आ जाएगी V इज इक्वल्स टू C1 की जगह C रख दो, V1 की जगह V रख दो, C2 की जगह C रख दो, V2 की जगह 0 रखना पड़ेगा और नीचे C1 प्लस C2 की जगह C प्लस C रख दें, यानी हो गया CV अपॉन 2C या फिर V/2। यानी पोटेंशियल कितना हो जाएगा इनिशियल वाली वैल्यू का, ये मैंने कहा इसको मैं नाम V डैश दे रहा हूँ। तो इनिशियल वैल्यू किसकी थी, V थी पहले वाले की, तो V/2 हो जाएगा। यानी फाइनल पोटेंशियल दोनों कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन का कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, V/2। ठीक है, V/2 हो गया। अब जब पोटेंशियल पता चल गया और दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया तो कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन मैंने माना है, पैरेलल। तो आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या होगा, C प्लस C, क्योंकि दोनों सेम कैपेसिटेंस के थे, तो कितना हो गया 2C। ये तो हो गया हमारा एक जो कॉम्बिनेशन बना उसके बारे में डिटेल। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन, देखिए यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन, अब एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकलेगा, E, मैं इसको नाम दे देता हूँ E2, हाफ CV² ना, हाफ कैपेसिटेंस की जगह 2C और V की जगह V/2, हाफ CV² में C की जगह 2C और V की जगह V/2। तो वैल्यू कितनी आ गई E2 की, E2 की वैल्यू आ गई 2 × 4, 1 2 कैंसिल आउट, 1/4 CV², ये वैल्यू आ गई। अब देखिए लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी। अब एनर्जी स्टोर्ड कितनी है और इनिशियल एनर्जी कितनी है, उसका रेशियो। तो रेशियो एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन
डिवाइडेड बाई एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। अब देखिए इनिशियल कितनी थी रेशियो, यही हमको निकालना है 1/4 CV² डिवाइडेड बाई इनिशियल थी 1/2 CV², सो इट इज़ 1/2। और हम कह सकते हैं E1/E2 है ना, नहीं E2/E1 है, क्योंकि E1 इनिशियल था, E2/E1, सो E2/E1 इज इक्वल्स टू 1/2, यही आपको निकालना था। तो ये हो गया हमारे कुछ बोर्ड्स क्वेश्चन। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप कैपेसिटेंस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एक और चीज़ है, उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर अरेंजमेंट आपका इस तरह रहा होता कैपेसिटेंस का, जो हम पैरेलल वाला पढ़ते हैं कि ये वाला हिस्सा K1 है, ये वाला हिस्सा K2 है, और ये अरेंजमेंट इस तरह से कुछ रहा होता, तब आप क्या करते कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस D/2 बटी होती, ठीक है ना, D/2 ये थिकनेस बटी होती, तब आप क्या करते और ये एरिया A ही रहता, तो इस वाले का कैपेसिटेंस आप C1, इस वाले का C2 मान लेते, ठीक है ना, ये दो अलग अलग अरेंजमेंट। अब इसमें जो C1 होता वो क्या होता, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। C1 होता ε0, एरिया तो सेम ही है, K1 हो गया, K1 पहले वाले के लिए, लेकिन थिकनेस को इस बार D/2 रख देना। इसी तरह इस सेकंड केस में C2 ε0 A K2 और D/2। तब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह से थिकनेस को आधा आधा वैल्यू रखना है और एरिया सेम रखना है, क्योंकि एरिया तो सेम है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आप मिलते हैं तो उसको भी आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।